Yes, answer is 60. Very good. Teacher asked student to get the average of first and natural numbers, but student mistakenly repeated one number twice. In this case, one number is repeated twice. The number of observation is basically increasing by 1. First and natural numbers थे, n+1 हो गए जब एक observation को repeat किया, and then calculate the average of all the numbers, including that repeated number. Both 40, 20 by 27. Can I say original average is close to, अब मैं इसको इतना डीपली नहीं बता रहा हूं, मैं सीधे लिख दूं ना, n is close to 80, is close to 80, average is close to 40, so n is close to 80. यहाँ पर ये 27 क्या डिनोट कर रहा है, क्या नहीं से ये 27 का implication होगा that n+1 is a number जो 27 का मल्टीपल है and close to 80, so that number is 81. 81 होगा सर, right? If n+1 is 81, it implies n is 80. अब ये accurate data आ गए हमारे पास. Actual number of observations is 80. After one number is repeated, 81, right? Now this number n is 80. Can I say original average is 1 plus 80 by 2? Plus 80 by 2 is, and 20 by 20 average. Average is how much? This is given 40 and 20 by 27. Average is increasing. 1 by 2 से 20 by 27 हो गया ना, तो average is increasing. ये average में जो भी increase है, change in average में लिख दूं पहले, otherwise problem होगी बाद में फिर इसमें. So change in average is 20 by 27. 40 को इग्नोर कर सकते हैं, and minus 1 by 2. This is 54 and 13. 13 by 54 is the change in average. Average is increasing. मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, increasing ना. Average is increasing. So if a person joins the group and उसकी वजह से average increase कर रहा है, तो वो person average से above है. So repeated number will be actual average 40 and half plus change in average 13 by 54 into number of observations. Final number of observations is 81. So आप देख सकते हैं, this is 40 and half plus 39 and half, you can say 19 and half. 39 by 2 is 19 and half. So ये number कितना आ जाएगा? 60. Repeated number is 60. Our answer.
I hope this is clear class now. हर्षवर्धन बार बार वही चीज कैसे हम पूछ सकते हैं यार? क्लोज टू 80 कैसे आया? 40 है ना एवरेज, ओरिजिनल एवरेज इज क्लोज टू 40, so number of observations is close to 80. ठीक है, if 1 plus n by 2 is close to 40, then n is close to 80. और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? एवरेज 1 plus 80 by 2, हमें तो वो नंबर नहीं ऐड करना चाहिए, हमने 1 क्यों ऐड किया है? कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए? जो भी मतलब ओरिजिनल एवरेज, दिस इज ओरिजिनल एवरेज. ओरिजिनल एवरेज मींस 1 से लेकर 80 तक के नंबर्स का एवरेज. ओके, ये न्यू एवरेज है जो इन्होंने दिया हुआ 40 and 20 by 27. ठीक है सर. तेरी चेंज इन वन मोर एवरेज क्वेश्चन सर. तेरी चेंज इन एवरेज हमने ये पुराने वाले और नए वाले से माइनस करके 13/54 है ना सर? एग्जैक्टली. एक्चुअल एवरेज 40 and half होना चाहिए, बट हेलो हो गया. हेलो हाँ बोलो. सर, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है. क्या? ये कैसे किए हैं? तो प्रीवियस क्वेश्चन समझ आ गए सारे? हाँ, प्रीवियस आया है. तो प्रीवियस क्वेश्चन ही तो है ये भी यार. इसमें बस एक पर्सन ज्वाइन कर रहा है ग्रुप को, बाकी तो कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चंस में. n is close to 80, average is close to 40, so number of observations is close to 80. ये जो 27 एवरेज में 40 20 by 27, तो that means n plus 1 must be 81. if n is close to 80, n plus 1 exactly 81 होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर 27 आया होगा इधर 27. तो n plus 1 is 81, n is 80. ओरिजिनल एवरेज निकाल सकते हैं 1 plus n by 2 से, which is 40 and half. समझ गए. यहाँ पर था. आगे चेंज है उसी से कर. हाँ, समझ गया. यहाँ पर 20, यहाँ पर 80, ये जो डेसिमल वाला नंबर था. 11 को ट्राई कीजिए क्लास. क्वेश्चन 11 को ट्राई कीजिए सभी.
अभी जितने टूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए, आई थिंक वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन विद इन 1 minute. Student was asked to calculate the average of natural numbers starting from x till n, right? X till n. But student mistakenly skipped one number and then calculated the average and got 42/7/26 as answer. 42/7/26 as answer. गौरव, अभी जो एक क्वेश्चन था उसमें जब तुम कह रहे थे कि 8 नंबर्स इधर ऐड कर लेंगे, 8 इधर ऐड कर लेंगे, दिस इज राइट. इसमें वैसा हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, एग्जैक्ट वो नहीं बट वैसा रिलेटेड हम लोग सोचेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब स्टार्टिंग के n नंबर्स नहीं गिवन है हमें. दिस नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर x टिल n, तो कहीं पर भी ये इन बिटवीन हो सकता है कुछ. 42/7/26 is the new average. Can you say actual average is close to 42? Actual average is close to 42. जो original average है is close to 42. This class actual average is close to 42. ये जो डिनोमिनेटर में 26 आया हुआ है, ये 26 कब कब आ सकता है? When final number of observations is 26 और 52 और 78, इस टाइप से हो सकती है ना. इन सभी से तो 26 बन पाएगा. फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 26 और 52 और 78, 104, इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं, राइट? हाँ, एग्जैक्टली. अभी मैं उस पॉइंट को कवर करूंगा कि 78 से ज्यादा नहीं हो पाएगा ये सब, बट अभी इतना हमें समझ आ रहा है कि अगर ये 26 यहाँ पर दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 26 का मल्टीपल होंगे, राइट? फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 26 और 52 और 78 एंड सो ऑन. ये सब हो सकता है 26, 52, 78. नाउ कैन आई से इनिशियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसी के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं. इनिशियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक नंबर को स्किप किया गया है ना, तो इनिशियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सबसे एक एक एक्स्ट्रा होना चाहिए. 26 + 1 is 27, 52 + 1 is 53, 78 + 1 is 79, राइट? आप देखो यहाँ पर, if we have final average 42/7/26, number of observations is odd, 27 observations, 59 observations, 79 observations. Can you say whenever number of observations is odd, then the average is middle number or natural number, you can say, है ना? नेचुरल नंबर होना चाहिए. 42 ही हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम चेंज वी हैव ऑलरेडी सीन, मैक्सिमम चेंज 1/2 का होता है ना? या तो 0.5 लेस हो सकता है या फिर 0.5 मोर हो सकता है एट मैक्स. तो अगर 7/26 है तो कहने से 43 तो नहीं हो सकता हमारा एक्चुअल एवरेज. 43 अगर एक्चुअल एवरेज होता तो उसमें इतना चेंज नहीं हो सकता था ना, 19/26 का चेंज. सो वी कैन से एक्चुअल एवरेज इज 42. एक्चुअल एवरेज must be 42, 42.5 या 41.5 या 43, ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज odd. If number of observations is odd, then average must be middle number or you can say natural number, a positive integer. 42 ही हो सकता है. Yes. सर, जब क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं that mistakenly skipped one number and then calculated the average, so does it mean that x till 9 में बार x को ही skip कर रहे हैं, कोई भी नंबर skip कर रहे हैं? जो फर्स्ट नंबर है उसको नहीं, कोई भी नंबर स्किप हो सकता है. मैं तो जस्ट ये कह रहा हूं कि अगर मैं x या n को भी स्किप करता तब भी 0.5 का ही चेंज आ सकता था ना.
तो एक्चुअल एवरेज 42 ही होना चाहिए, 43 तो अलाउड नहीं है ना उस केस में, क्योंकि 43 से 42 7/26 आप चेंज को ऑब्जर्व करेंगे, दैट चेंज इज ग्रेटर देन 0.5, दैट्स व्हाई। सर प्लीज ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। लास्ट एवरेज, why average is 42? हाँ Number of observations is odd number. There are odd number of numbers, then उनका average will be middle term ना. यस Middle term means one of the observation in between, जो भी middle observation होगी. 42 7/26 is new average. Actual average क्या हो सकता है? इसी के क्लोज होना चाहिए, तो इसी के क्लोज कौन सा नंबर हो सकता है? 42 या 43? 43 को रूल आउट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक्चुअल एवरेज 43 है, ये चेंज फिर हाफ से ज्यादा का हो जाएगा। 43 से ओके कहां पहुंच रहे हैं? 42 7/26 में, तो चेंज 0.5 से ज्यादा का है, जो अलाउड ही नहीं है, इतना चेंज होता नहीं है एवरेज में, if only one number is skipped. So actual average is 42. Now, अगर मैं फर्स्ट केस के करस्पॉन्डिंग, there are 27 observations, right? When 27 observations, तब एवरेज कितना होगा? ओरिजिनली रादर स्किप नंबर कितना होगा? मिसिंग नंबर. मिसिंग नंबर is equal to average 42, change in average 7/26, and average is increasing, that means missing number is below average. अगर किसी के जाने से एवरेज इंक्रीज कर रहा है तो मिसिंग नंबर इज बिलो एवरेज, माइनस करेंगे 7/26 into originally observations are 27, then final observations are 26, so 42 minus 7 is 35. Case 2, when there are, you can say 53 observations, तो into 52 कर देंगे, मिसिंग नंबर कितना आ जाएगा? मिसिंग नंबर इज 42 minus 7/26 into 52 is 28. Case 3, when there are 79 observations, in that case our missing number, 78 होगा ना? originally मैं लिख रहा हूँ, originally observations है 79, so missing number is 42 minus 7/26 into 78, which is final number of observations. So 42 minus 21 is 21. Now original observations cannot be greater than cannot be 105, right? Original observations can't be 105 or more due to obvious reasons ही मैं बोलूंगा, क्योंकि एवरेज 42 नहीं आ पाएगा ना उस केस में। क्या नहीं से, अगर मैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को भी कंसीडर कर दूं, मतलब 1 से स्टार्ट करूं, सो एवरेज 42 कब आएगा? जब हमारी ऑब्जर्वेशंस 83 होंगी, 83 ऑब्जर्वेशंस। तो कहने से 83 से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी इन केस, देन एवरेज विल इंक्रीज। आप सोचो, आपको एक्चुअल एवरेज 42 चाहिए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज भी अगर मैं निकालता हूं तो उसमें नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना होना चाहिए? 83। फर्स्ट 83 नेचुरल नंबर्स का एवरेज इज 42। अगर हम 83 से एक्सीड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, देन द एवरेज विल इंक्रीज। तो 42 नहीं रहेगा उस केस में एवरेज। इंटीजर्स के केस में नहीं कह सकते हैं यार, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज आ जाएंगी। इंटीजर्स के केस में नहीं कह सकते हैं। सर यस आकाश।
सर ये एक्चुअल एवरेज वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझ नहीं आया था सर, 42 के लिए सर। या उसी टाइम पर पूछो, अभी हम लोग सर उस टाइम पे भी नहीं आया उसी टाइम पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सर, उसके बाद का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर। उसके बाद का वो तो इम्पोर्टेंट नहीं, आप 42 नहीं निकाल पाओगे एग्जाम में, तो बाद में क्या करेंगे? ओके, फाइनल एवरेज इज क्लोज टू 42, सो एक्चुअल एवरेज इज आल्सो क्लोज टू 42, ये कह सकते हैं। नाउ व्हाई एक्चुअल एवरेज इज एग्जैक्टली 42? देखो यहाँ पर आप देख रहे हो जो एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है आर ऑड नंबर्स, 27, 53 एंड 79, ये ऑड नंबर्स हैं। द मिडिल टर्म इज द एवरेज, मिडिल टर्म इज द एवरेज। 42 7/26 के क्लोज कौन सा नेचुरल नंबर है? 42 है। 43 को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? नोट 43, वाई नोट 43? क्योंकि अगर एक्चुअल एवरेज 43 का होगा तो न्यू एवरेज कैन बी बिटवीन 42.5 एंड 43.5। मैक्सिमम अलाउड चेंज इज 0.5। जब भी आप कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स में से किसी को मिस करते हैं तो मैक्सिमम चेंज इज 0.5, इसलिए 43 को हम लोगों ने नहीं रखा। 43 से आप 42 7/26 पर जाएंगे तो वो चेंज ज्यादा का है, 0.5 से ज्यादा का। अंडरस्टूड नाउ? यस सर, थैंक यू सर। ओके, ये 78 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? 78 से ज्यादा अगर आप रखोगे तो सीधे 104 ही एक चॉइस है, 26 का मल्टीपल 104, और इसके करस्पॉन्डिंग ये 105 आ जाएगा। 104 एंड 105, फर्स्ट 105 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होता है? 53। 42 तो कभी नहीं आ सकता ना। अगर मैं फर्स्ट 105 नेचुरल नंबर्स को भी कंसिडर करता हूं तो उसका एवरेज कम से कम 53 है। अगर मैं कहीं इन बिटवीन 105 नंबर्स लूंगा तो उनका एवरेज तो 53 से ज्यादा ही रहेगा। यस, दैट्स व्हाई दिस कांट बी 105। एक्चुअल एवरेज 44 नहीं हो सकता क्या? 44? यस सर, मतलब जैसे 42 के क्लोज ही हो गया 43 के। 0.5 का चेंज अलाउड है सिर्फ एक्चुअल एवरेज में, और न्यू एवरेज में 0.5 से ज्यादा का चेंज नहीं हो सकता। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है? यस सर। अरे जिसने पूछा था उनको बोलने दो ना, आकाश। सर ये 44 वाला डाउट भी था मेरा, क्लियर हो गया। अच्छा, सर ये हमेशा होगा, मतलब 0.5 से ज्यादा चेंज हाँ, कभी भी नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल नहीं होगा। आप सोचो ना, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर उनका एवरेज कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म या फिर मिडिल टर्म बाय 2 करते हैं, तो 0.5 होगा या फिर वो नेचुरल नंबर होगा एग्जैक्ट, वही मैक्सिमम चेंज हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 12 को आंसर कीजिए। सर Yes. जैसे ये टीटा वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें टाइप इन टाइप आंसर में सर, इसमें रीचेक कैसे करेंगे सर फिर अगर हमें करेक्ट करना हो तो? ये तो ऑब्वियस सी बात होगी ना, रिचेक नहीं कर सकते हैं उसमें। मतलब इसमें रीचेक नहीं हो पाएगा सर? मतलब कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि आंसर्स कैसे मैच करना है, किससे मैच करना है? अच्छा, तो हमारे इसमें सर अप्रॉक्स वैल्यू निकलते हैं इसीलिए। अच्छा, इसमें आपसे सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछा गया था ना, तो उसको आप फाइनल आंसर को तो एटलीस्ट लिख लो। 35 प्लस 28 प्लस 21, 84 ही आ जाएगा आंसर हमारा। 80। Sir, I was asking in question number 10, एक previous Yes. question where we were adding one more observation. तो जैसे question number 9 and 10 में we got to know that the maximum change is 0.5 and 0.5 less or more. So in this case, the maximum change is increase होने पे 1 and decrease होने पे it can be any fractional value. देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें भी जो हमारा एक्चुअल एवरेज रहेगा वो क्लोज ही रहेगा, बट एक्चुअल जो चेंज है उसको मेजर हम लोग नहीं कर सकते हैं।
मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए डिफरेंट रहेगा हमारा एक्चुअल एवरेज। मैक्सिमम तो 80/81 होगा और मिनिमम 1/81 होगा। वो डिपेंड करेगा ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको, अगर 80 नहीं है यहाँ पर, मैं 160 ऑब्जर्वेशंस कर दूंगा तो 159/160 फिर बोलेंगे हम लोग उसको। ये बट कह 160 रहा हूँ। ले नहीं पाएंगे ना सर, 160 लेंगे तो एवरेज कभी 40 का कुछ नहीं आएगा। 160 ले लेंगे तो अरे एवरेज यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुमसे सुन तो रहे नहीं तुम बात, मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ 40 है इसलिए तुम 79/80 कह रहे हो। अगर 40 की जगह 160 टाइप कुछ वैसा होता तो तुम 159/160 कह रहे होते, बट उस केस में वैसा नहीं है। यहाँ पर एवरेज आप कुछ भी रख लो, अगर आप एक नंबर को मिस कर रहे हो एवरेज आप कुछ भी रख लो, 0.5 से ज्यादा का चेंज नहीं होगा ऑन आइदर चेंज आइदर साइड। मिसिंग नंबर हमेशा ऐसा ही ट्रू होगा व्हाटएवर बी द एवरेज, बट रिपीटेड नंबर में एवरेज राइट जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उस पर डिपेंड करेगा कितना चेंज आ सकता है मैक्सिमम मिनिमम। तो सर 159/160 भी लेंगे तो मैक्सिमम चेंज तो 1 का ही आ सकता है ना, बिकॉज 159/160 है, मतलब 1 से कम ही होगा जो भी हो। एक सेकेंड, if I have 5 numbers 1 2 3 4 and 5, एवरेज कितना है 3। तो मैं 5 को रिपीट कर देता हूं तो 1 2 3 4 5 and 5, एवरेज कितना होगा 3 + 5/6। यस सर। अगर मैं नंबर्स रखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं 9 को रिपीट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले एवरेज कितना है 5 5 + 9 और बाद में एवरेज कितना है 5 + 9 को रिपीट किया 9/10। सर एक चेंज केस तो में 1 का चेंज कहाँ दिख रहा है तुम्हें? मैं कह रहा हूँ 1 से कम ही आएगा। 5/6 is less than 1, 9/10 is less than 1। हाँ तो एग्जैक्ट चेंज मेजर नहीं कर सकता ना कितना आएगा, एग्जैक्ट चेंज मेजर नहीं कर, मैं यही तो 1 से कम ये ही समझा होगा। रहा था। हाँ क्लोज ही रहेगा अभी भी हमारा एवरेज, मैं ये समझा रहा था सिर्फ, बट यही 0.5 फिक्स्ड है मिसिंग नंबर वाले केस में। मिसिंग नंबर वाले केस में यही चीज 0.5 फिक्स्ड है, उससे ज्यादा का चेंज नहीं हो सकता। यस या सर तो 0.5 डिक्रीज हो सकता है मैक्सिमम या फिर 0.5 इंक्रीज। यस सर।